Hey everyone, this is Maru, and in this video, we are going to talk about the journey of मृणाल जैन। मृणाल जैन आप सब में से काफ़ी लोगों ने पहचान, बहुत सारे लोग आप जानते होंगे मृणाल जैन को। अगर नहीं जानते, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। ही इज़ करेंटली द टेकी हेड एट stage.in। stage.in क्या है? बेसिकली एक आपको इसके बारे में एक OTT प्लेटफॉर्म है। एक काफ़ी सारा हम सबका, जब हम लोग वेब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं या फिर कोई भी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं, बेसिकली हैंडलिंग द ऐप डेवलपमेंट, एंड वहाँ पे उन्होंने मतलब एज ए एस्पायर, जहाँ पे आप लोग डेवलपमेंट के जानने स्टार्ट कर रहे हो, वहाँ पे इस स्टेज में पहुँचना काफ़ी बड़ी बात होती है। हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कैसे उन्होंने वहाँ तक पहुँचे, एंड एवरीथिंग, आई मीन व्हाट इज़ द रोड मैप एंड कहाँ से स्टार्ट किया था, एवरीथिंग। एंड स्टेज.in अगर स्टेज क्या है, अगर आपको नहीं मालूम तो मैं एक बार क्लियर कर दूं कि अगर लास्ट सीजन में आप लोगों ने फंडिंग के लिए आए थे, मैं थोड़ा सा हो सके तो क्लिप यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लेना। बाकी इस पॉडकास्ट में आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना एंड आपको समझ में आ जाएगा। सो हाय मिनाल। Hi, Maru. And so first, give me an intro about you. Cool. So, first of all, thanks a lot for inviting. I'm really excited about talking to you about the whole journey of stage or journey of myself. Like it's mostly the same, almost same. क्योंकि मैं stage के साथ and the previous company which we had, I mean, जो लोग Shark Tank देखा होगा जिन लोगों ने, वो लोग easily relate कर पाएंगे इससे। That I'm working with this particular organization from past, I guess 5-6 years now. So personally talking about me, I have been a web developer from sort of college days itself. I was a bit introvert. I'm not sure if people will believe it or not, but I was a bit introvert, so learning things and everything was pretty much difficult for me, right? So started learning few things from my own, कुछ ही चीज़ें सीखते थे, कुछ ही चीज़ें इम्प्लीमेंट भी करते थे। तो वैसे ही जर्नी रही थी। दूसरी ओपन सोर्स कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट करते थे। ऑनलाइन जितना भी मिल गया, अभी तो यूट्यूब पे टन्स एंड टन्स ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है, बट बैक देन इन 2014, 13, 16 इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल होता नहीं था लर्निंग के लिए। तो जैसे भी तैसे भी करके कुछ वेब डेवलपमेंट सीख के आई स्टार्टेड वर्किंग ओवर हियर। Journey with Witty Feed or Stage has been a really interesting one. I started as a web developer over here. I used to make HTML pages, HTML websites, and then later on kept on upgrading myself. PHP सीखा, JavaScript सीखा, Angular सीखा, started contributing to the backend team and all. Then cut to whatever happened with Witty Feed. We started to, or we thought of shifting our complete focus from website to mobile app, and that's when this stage happened. Since then I've been working as a Flutter developer. Mobile application बनाना start किया, and then started contributing to that part. And then जब उसमें comfortable हो गए, तो then I started taking care of the team because I had the most sort of सबसे ज़्यादा idea था about the whole project and about the whole application. So I took the lead and started taking care of the team. चीज़ें कैसे करेगी, कैसे काम करेगी, and that's where I am as of now. So इतना सारा बताने का, there was just one key takeaway from the whole, if I can share that, is that you can never sort of feel comfortable in whatever things you are doing. You need to keep on upgrading yourself. That's what I have learned from my journey over here, and in general as well. You have to keep upgrading yourself. कुछ ना कुछ नया आपको हम हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। वो एक टेकअवे मुझे लगता है मेरे से। ऑब्वियसली ये ज़िंदगी ऐसा है कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो।
सो इंट्रो इतना ही था एंड आगे चलकर और भी बात करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ यू started your journey from school, if possible, if you want to share your journey. I mean, yeah, sure. So, as I mentioned in the introduction as well, that I have been an introvert kid since school days. All the introverts out there who are listening, they'll be able to relate to what all problems we have to face as an introvert, right? Yeah. Because एक छोटी चीज कराने के लिए भी, किसी से हेल्प लेने के लिए भी आप 10 बार सोचते हो, राइट, कि इस चीज के लिए मैं कैसे बात करने वाला हूँ, इस चीज के लिए मैं कैसे पूछने वाला हूँ किसी से. तो एक अलग ही स्ट्रगल होता है इंट्रोवर्ट्स का. तो वैसी ही जर्नी रही राइट फ्रॉम स्कूल. लेस फ्रेंड्स, कुछ कम फ्रेंड्स रहे हमेशा से स्कूल में भी. कॉलेज में आने के बाद भी एक अलग ही इन्वायरमेंट देखने को मिला, क्योंकि स्कूल में तो आप 5-6 साल 7 साल सेम स्कूल में अगर हो तो समहाउ आप कंफर्टेबल फील करने लग जाते हो, राइट. बट कॉलेज में फ्रॉम डे वन यू हैव टू फेस सो मेनी चैलेंजेस, राइट. नया करिकुलम है, नए टाइप के स्टूडेंट्स है, 20-25 अलग अलग स्कूलों से वहाँ पे लोग आए हुए, राइट. एंड यू बीइंग इंट्रोवर्ट, यू हैव टू फेस ऑल दैट प्रॉब्लम. तो थोड़ा स्ट्रगल वाला ही जर्नी रहा है पूरे 4 साल ही कॉलेज के. बिकॉज हिंदी मीडियम से अगर आप जाते हो स्पेशली टू कॉलेज, तो वो एक अलग ही अगेन अ चैलेंज. सो इट वाज ऑल अबाउट चैलेंजेस ऑल द 4 year ऑफ कॉलेजेस. बट एक अच्छी चीज़ उसमें ये हुई कि मुझे लर्निंग के अलावा, कॉलेज से जो लर्निंग मिलती है, फैकल्टीज के थ्रू जो लर्निंग मिलती है, उसके अलावा मुझे एक और चीज़ के बारे में पता चला जहाँ से आप चीज़ें सीख सकते हो. दैट वाज कम्युनिटीज, ओपन सोर्स कम्युनिटीज. कॉलेज में या स्कूल में आपको सिर्फ जो टीचर्स पढ़ाते हैं उतना ही आप लोग को सीखने की आदत होती है. जनरली स्टूडेंट्स को भी यही आदत होती है कि यार टीचर ने जितना सिखाया वो मेरे को सीखना है, एग्जाम में उसमें से ही कुछ क्वेश्चंस आएंगे और मैं लिख के आ जाऊंगा, राइट. आज की दुनिया में वो चीज़ बिल्कुल भी आपको सफिशिएंट नहीं है. ऑब्वियसली. अब अगर आप छोटे से छोटे बच्चे को भी देखोगे तो वो स्कूल के अलावा 10 चीज़ें कहीं और से भी सीख रहा है. तो वही चीज़ मुझे भी पता चली. ओपन सोर्स कम्युनिटीज़, अलग अलग टेक कंपनीज के बारे में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि वो लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज़ भी रन करते हैं. आप माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लो तो उनका माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट पार्टनर प्रोग्राम है. आप गूगल की बात कर लो, उनका गूगल डेवलपर्स ग्रुप, स्टूडेंट डेवलपर क्लब है. आप फेसबुक की बात कर लो, मेटा विच इज नाउ, तो उनका मेटा डेवलपर्स सर्कल है. तो इन सारी चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला. और इन्हीं सब चीज़ों से जो मैंने लर्निंग ली है और इन्हीं सब चीज़ों से जो मैंने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट किया था, इसी के कारण मुझे मेरे करियर में जितने भी जॉब्स मिले हैं, जितने भी मेरे को अभी तक के कनेक्शंस मिले, वो इन्हीं चीज़ों के कारण मिले. इवन व्हेन आई गॉट माय दिस जॉब पर्टिकुलर ओवर हियर इन स्टेज, तो स्टेज पहले विटी फील्ड हुआ करता था, राइट. यू गाइस माइट बी नोइंग. तो शशांक, हु इज द सीटीओ ऑफ द कंपनी, तो उनका और मेरा इंट्रोडक्शन भी एक कम्युनिटी इवेंट में ही हुआ था. एक कम्युनिटी इवेंट उन्होंने अपने ऑफिस में होस्ट किया था. मैं एज ए अटेंडी आया था और हमारा वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ और उन्हें मेरे बारे में पता चला. और 2 या 3 साल बाद जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ, 1 साल मैंने हैदराबाद में जॉब करने का ट्राई किया, 1 साल बैंगलोर में मैंने जॉब करने का ट्राई किया. एंड देन व्हेन आई रीच्ड आउट टू शशांक एंड ही वाज लाइक यस मृणाल आप आ जाओ. तो ना तो मेरी डिग्री के बारे में पूछा उन्होंने, ना तो मुझसे पूछा कि क्या कर सकते हो, क्या कर लोगे. बस उन्हें एक कॉन्फिडेंस था और उन्होंने मुझे बुला लिया. तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर विटी फील्ड और वही जर्नी अभी तक कंटिन्यूएशन में चल रही है. गुड, वेरी गुड. मतलब शायद मैं कह सकता हूँ कि इट्स मतलब फॉर्चुनेट कि आप लोगों को मतलब कोई ऐसा शायद ही कोई बंदा होगा जो कि आपको डिग्री भी नहीं पूछेगा या फिर कुछ क्या कर सकते हो ऐसा पूछेगा. या इवन ऑब्वियसली इसके अलावा भी आपका कॉलेज, अभी तो काफ़ी सारा कॉलेज डिपेंड करता है. बहुत सारे अभी भी मतलब इतने अभी के इस सिचुएशन में भी काफ़ी सारे लोग हम लोग लिंक्डइन वगैरह में पोस्ट करते हुए देखने को मिलता है कि काफ़ी लोग ऑलरेडी मेंशन कर देते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन एंड में मेंशन कर देते हैं IIT एंड NIT, ओनली ग्रेजुएट्स फ्रॉम द IIT एंड NIT.
सो वहाँ से ये ब्रेक मिलना काफ़ी बड़ी बात होती है. सो इट्स गुड. एंड द थर्ड क्वेश्चन इज कि टेल मी अबाउट योर पोजिशन जर्नी इन द स्टेज. Okay, okay. From where you start and now you are in the take head in the stage. Correct, correct, correct. So, my journey in stage has been again a very interesting story because जब हम लोगों ने विटी फील्ड को क्लोज किया था एंड 2019 में वी थॉट ऑफ स्टार्टिंग स्टेज. सो आई हैव बीन देयर सिंस डे वन. मतलब जब से हमको आइडिया आया स्टेज का, पूरी कंपनी को एक OTT प्लेटफॉर्म बनाने का आइडिया आया कि रीजनल डायलेक्ट्स में OTT प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, तो मैं उस दिन से हूँ इस पर्टिकुलर कंपनी में. एंड आई एम लकी इनफ कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखा था वो भी मैंने लिखा था, और आज तक जितना भी कोड स्टेज ऐप के ऊपर है, आई एम लकी इनफ कि आई एम एबल टू रिव्यू इट, और वो मेरे सामने सारा कुछ हो रहा है. शायद अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी टीम कर रहा है, लेकिन फाइनलाइज आप ही कर रहे हैं. करेक्ट, करेक्ट. बट स्टार्टअप्स में एक्चुअली होता क्या है ना कि पोजीशन इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेम. आप अगर इवन आई एम अ इंजीनियरिंग लीड, करेक्ट, बट आप अगर CTO भी हो, CEO भी हो, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बैठ के सिर्फ चीजें एनालाइज कर रहे हो, राइट. मतलब मैं स्पेसिफिकली व्हेन आई वाज ऑफर्ड द पोजीशन ऑफ इंजीनियरिंग लीड, सिर्फ एक मैंने चीज़ पूछी थी, या एक चीज़ के लेवल पे मैंने एग्री किया था कि मैं इंजीनियरिंग लीड तभी बनूंगा जब मुझे अलाउ किया जाएगा कि मैं अभी भी कोड करूं. That's the only sort of कंडीशन which I kept in front of my CTO. यार अगर आप मुझे कोड करने से रोकोगे तो मैं इंजीनियरिंग लीड नहीं बनूंगा, अगर आप मुझे कोड करने दोगे तो मैं इंजीनियरिंग लीड बनने के लिए रेडी हूँ. सो स्टार्टअप कल्चर या स्टार्टअप इकोसिस्टम में यही सबसे अच्छी चीज़ होती है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आपकी क्या पोजीशन है, आप 10 दूसरी पोजीशन का भी काम करते हो, और दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ एनी कंपनी. अगर ये इस टाइप का कल्चर किसी कंपनी में है तो, बिकॉज ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है इस टाइप से. तो सेम इज द केस विथ मी. मतलब इवन व्हेन आई वाज जस्ट वर्किंग एज अ फ्लटर डेवलपर, मेरे को अलाउ किया जाता था कि मैं टीम डिसीजंस में पार्टिसिपेट करूं, एंड आई यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस कि यार ऐप में ये चीज़ होनी चाहिए, ऐप में अपने को ये नया बनाना चाहिए. तो इवन बिफोर ऑफिशियली बिकमिंग द लीड, आई वाज समवेयर इनसाइड माय माइंड ऑलरेडी द लीड. तो वो फीलिंग आना बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट इन वन एम्प्लॉय, इन एवरी एम्प्लॉय वो फीलिंग होनी चाहिए. तो ये सिर्फ स्टेज की जर्नी नहीं है, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्टार्टअप जर्नी. तो जिस स्टार्टअप में इस तरीके का ऑनरशिप ड्रिवन कल्चर रहता है, the success is definitely inevitable. Someday you'll get it. And Shark Tank में जैसा आप लोगों ने देखा, right? That was not a made up story, है ना? मतलब वो that's a real story, और वो तो सिर्फ 30 minutes का जो एपिसोड कह सकते हैं लोगों ने सुना, right? But we as a company, we have lived it in last 5 years. So I'm glad enough that I have been working for this company from last 4 years. Yeah. ओके, ग्रेट. आई मीन या ऑब्वियसली एक स्टार्टअप में मतलब अगर नॉर्मली आपको कोई स्किल आता है तो आप किसी भी कंपनी को फोड़ सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टअप में एक पोजीशन ऑफर हो रहा है तो ऑब्वियसली आप सिर्फ एक टेकी, मतलब स्किल तो आप कभी भी सीख सकते हो, लेकिन जो स्किल के साथ साथ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर एवरीथिंग यू आर कंट्रीब्यूटिंग ऑन द मैनेजिंग एंड everything from the CEO. Sometimes you have to handle the CEO part, sometimes you have to handle the CTO part, the especially the decision level. That's are the main vital point of a startup. सो यार बहुत ही मतलब ऑब्वियसली किसी को भी इसीलिए शायद सीनियर या फिर जितने भी लोग टेक इंडस्ट्री में जा रहे हैं, ऑब्वियसली सबसे एक कॉमन एडवाइस ये मिलता है कि if you start your career and if you want to grow more and more, then try to start your career from startups. Maybe सैलरी थोड़ा सा डाउन है, लेकिन
इवेंचुअली वहीं पे आपको एक चीज़ और भी मिलता है कि इफ़ यू वांट टू ग्रो फॉर लॉन्ग टर्म देन यू हैव टू ज्वाइन द स्टार्टअप्स, बिकॉज स्टार्टअप्स में काफ़ी टाइम में ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स आपको सैलरी के साथ साथ आपको कंपनी का हिस्सा मानने लगते हैं. सो अगर कंपनी ग्रो कर गया देन आप भी ग्रो कर जाओगे. दैट्स अ ग्रेट. So yeah, now the fourth question is, tell me about the Withy hacks. You have mentioned in your tutorials and all about the wherever you take the sessions and all Withy hacks. What is the Withy hacks? Correct. So as I have mentioned कि during college days मेरा communities में बहुत ज़्यादा involvement था, right? तो जितनी भी ये टेक कम्युनिटीज़ है, राइट, जैसे मैंने फेसबुक के बारे में बताया था और मोजिला के बारे में बताया था और माइक्रोसॉफ्ट के बारे में बताया, तो इन सारी कम्युनिटीज़ से ना आपको बहुत सारा लर्निंग मिलता है, करेक्ट. तो राइट फ्रॉम कॉलेज डेज मैं क्या करता था, बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता था हर एक टेक्नोलॉजी के लिए. जावास्क्रिप्ट के ऊपर इवेंट हो गया, रिएक्ट के ऊपर इवेंट हो गया, फ्लटर के ऊपर इवेंट हो गया. तो ये सारे इवेंट्स में 1 डे वर्कशॉप या 2 डे वर्कशॉप ऐसे करके कुछ ना कुछ करवाता था. तो Witty Hacks इज वन ऑफ दोस पर्टिकुलर वर्कशॉप और यू कैन से हैकाथॉन. तो Witty Hacks में क्या करते हैं हम लोग, 36 आवर्स लॉन्ग का हम एक हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराते थे हमारे ऑफिस के अंदर ही, Witty Feed के ऑफिस के अंदर ही. सो दैट्स वेयर वहीं से नाम हम लोगों ने रखा Witty Feed एंड Witty Hacks. तो 36 आवर्स के लिए हम लोग एट दी स्टार्टिंग ऑफ दी 36 आवर हम लोग क्या करते थे, स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते थे. यार ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करो, कुछ प्रोडक्ट बनाओ इसके ऊपर, और या तो ये चीज करो, इसके ऊपर कुछ सॉल्यूशन लेकर आओ. तो ऐसे 4-5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते थे और 36 आवर्स तक हम स्टूडेंट्स को ग्रूम करते थे कि अच्छा आप ये प्रोजेक्ट ऐसे बना सकते हो, इसमें ये चीज कर सकते हो. मेंटरशिप प्रोवाइड करते थे और एंड ऑफ 36 आवर्स पे हम लोग उसमें से विनर्स अनाउंस करते थे. सो ये एक Witty Hacks इज सॉर्ट ऑफ अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ माइंड. हम लोग हर साल ऑफिस के अंदर एक ये 36 आवर्स का हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराते हैं. तो इट्स बीन रनिंग फ्रॉम 2017. इस साल भी अप्रैल में वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग इट इन इंदौर. तो इट्स लाइक द बिगेस्ट हैकाथॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया. तो वही है, इट्स लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ माइंड. तो अगेन कम्युनिटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो ये सारी चीजें करने का भी फायदा मिलता है आपको. तो यही है, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी. या इट्स गुड. क्या इसमें बाकी सारे इंडिया के बाकी सारे बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं? करेक्ट, डेफिनेटली. तो हमारा जो सीजन 1 था Witty Hacks 1.0, the team which won was from Jaipur. The team which came runner up was from Chennai. तो अक्रॉस दी इंडिया हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आते हैं. बेस्ड ऑन दी ऑफिस की कैपेसिटी हम लोग समवेयर अराउंड 40-50 टीम्स को अलाउ करते हैं. तो इट्स क्वाइट पॉपुलर. Witty Hacks इज क्वाइट पॉपुलर अक्रॉस इंडिया. तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है. यू नीड अ टीम ऑफ 4 पीपल. आप किसी भी कॉलेज से अपनी टीम बना सकते हो एंड देन यू कैन पार्टिसिपेट. तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. Yeah, good. I mean, obviously, if you want to brush up your talent, your skills, obviously you can go for there and आप जितना पार्टिसिपेट करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, उतना ही आपका इसे आप ग्रो कर सकते हो. इसे वो एक कहते हैं ना कि गोल्ड जितना घिसता है उतना ज़्यादा चमकता है. तो ऑब्वियसली ऐसे ही. एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, tell me about the Flutter organizer in Indore. I mean, if someone, for example, I want to organize a Flutter something in Kolkata. So how to arrange and how and all. I don't know anything about this. Okay, so basically Flutter is a technology which is supported by Google. ठीक है. अगर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करना हो तो आजकल इतना आइडिया सबको रहता है कि अगर आपको एंड्रॉइड के लिए एप्लीकेशन बनाना है तो एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके आपको बनाना पड़ेगा, करेक्ट. अगर iOS मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाना है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे एक्सकोड या एप्पल का कोई सा टूल लगेगा जिसमें जाके आपको एप्लीकेशन बनाना रहेगा. इतना बेसिक आइडिया सबको रहता है, करेक्ट. तो लास्ट के 2-3 साल के पहले 2017-16 तक यही बेसिक चीज हुआ करती थी कि यार अगर आपको
एंड्रॉइड मतलब बेसिकली एंड्रॉइड डेवलपर अलग होते थे, iOS डेवलपर अलग होते थे, Yeah. मतलब दो अलग अलग पोजीशन होती थी किसी भी कंपनी के अंदर। गूगल ने क्या किया है, गूगल ने टेक्नोलॉजी इन्वेंट करी है जिसका नाम है फ्लटर, ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज। फ्लटर में अगर आप कोई सी मोबाइल एप्लीकेशन बना रहे हो तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगी, वो एंड्रॉइड पे भी चल जाएगी, वो iOS पे भी चल जाएगी, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो वेब पे भी चल जाएगी, मतलब आपके क्रोम के अंदर भी चल जाएगा। मतलब आप एक सिंगल पेज से मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो। एग्जैक्टली तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी बना दी गूगल ने जिसका नाम है फ्लटर। तो ये तो हो गया फ्लटर के बारे में। अब इतनी मस्त चीज है, इतनी सही चीज है, इसको प्रमोट करना चाहिए। तो उसी के लिए गूगल ने क्या किया है, अक्रॉस द ग्लोब हर सिटीज में फ्लटर के चैप्टर्स ओपन किए। तो फ्लटर इंदौर इज वन ऑफ दोज चैप्टर्स जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। तो मैं स्टूडेंट्स को फ्लटर के बारे में मोटिवेट करता हूँ, फ्लटर को प्रमोट करता हूँ, वर्कशॉप्स लेता हूँ, सिखाता हूँ कि अरे फ्लटर आप कैसे यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्लटर इंदौर। एंड most probably if you are from, let's say you are from Kolkata, and then if someone is from Mumbai, someone is from Bangalore, so you can find a Flutter chapter of your own in your local region as well. हर सिटी में almost अब एक Flutter chapter available है, क्योंकि Flutter is a sort of a exponentially booming market. तो इसी के लिए again just contributing back to the community, मुझे Flutter आता है, मैं 2019 में सीखा था स्टेज ऐप बनाने के लिए, अब मैं सबको सिखाना चाहता हूँ, तो उसी के लिए मैंने ये कम्युनिटी स्टार्ट करी। Yeah, it's good. Even from my college also, there are some of my friends participate in Flutter Kolkata, organized by the Google Developer Student Club. So yeah, I mean obviously इसमें बहुत सारे कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को नॉट ओनली द स्किल्स, इवन आप एक पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, वहाँ पे आप बोलना सीख रहे हो। अगर आप फाइनल राउंड तक जाते हो, आप सेमीफाइनल राउंड तक जाते हो, देन यू हैव टू प्रेजेंट योर प्रोजेक्ट बिफोर, क्योंकि एट द एंड प्लेसमेंट के टाइम में या फिर फ्यूचर में बहुत सारा एक काम में आएगा। फॉर एग्जांपल कि आप फाइनल ईयर में आपको प्रोजेक्ट प्रेजेंट करना होगा, या फिर आपको आफ्टर द कॉलेज आपको टीम में आपको प्रोजेक्ट सबके सामने प्रेजेंट करना हो रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब इवन ऐसे काफ़ी सारे लोग ये भी शेयर करते हैं कि जॉब लाइफ में जाके भी ठीक ठाक से प्रेजेंट नहीं कर पाते, सो उसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाती है। सो या गुड। And the next is कि the journey of community manager at Meta. करेक्ट। सो ये सब कुछ जनरली पैरेलल ही चला मेरे लाइफ के अंदर, मतलब फ्लटर हो गया या विटी हैक्स हो गया या मेटा हो गया। तो राइट फ्रॉम कॉलेज डेज मैंने जैसे कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया था, तो एज ऑफ नाउ इट इज नोन एज मेटा डेवलपर सर्कल। back then it was known as Facebook developer circles। तो पहले Facebook developer circles होता था। तो जैसे Flutter एक गूगल की टेक्नोलॉजी है, वैसे ही React जो है, React is also a language, is a technology which is supported by Facebook। अभी मार्केट में आप देखोगे तो किसी भी एक टेक्नोलॉजी की मोनोपोली नहीं है, मतलब आपको जॉब जो मिलेगा वो आपको अगर रिएक्ट आती तो रिएक्ट डेवलपर के लिए भी जॉब मिलेगा, आपको फ्लटर आता है तो फ्लटर के लिए भी मिलेगा, आपको एंगुलर के लिए भी मिल जाएगा, आपको पीएचपी के लिए भी मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है और अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी कंपनीज किसी न किसी एक टेक स्टैक पे काम कर रही है। करेक्ट। तो एज अ डेवलपर या एज अ कम्युनिटी पर्सन मेरा राइट ये है या मेरा ड्यूटी ये है कि मैं सिर्फ किसी एक टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं स्टूडेंट्स को बताऊं, क्योंकि फिर वो क्या हो जाएगा ना, स्टूडेंट्स का माइंड वैसा हो जाएगा कि अरे फ्लटर ही चल रहा है मार्केट में तो सब फ्लटर सीख लो, बट ऐसा नहीं है। माय गोल शुड बी कि मैं सारी टेक्नोलॉजीज के बारे में बता पाऊं स्टूडेंट्स को, एंड देन स्टूडेंट्स शुड डिसाइड कि यार मेरे लिए कौन सा बेटर है, क्योंकि जॉब हर टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है। तो फ्लटर हो गया गूगल का, वैसे ही जो रिएक्ट है और रिएक्ट के अलावा जो चीजें हैं, रिएक्ट हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, रिएक्ट 360 हो गया, ये सारे फेसबुक के टेक्नोलॉजीज हैं। तो इनको प्रमोट करने के लिए या इनके बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज देने के लिए आई स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर रोल which is of managing the central India's Facebook community।
तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव था कम्युनिटीज़ के अंदर इंदौर में। तो फेसबुक गाइज अप्रोच्ड मी बेसिकली इन दिस केस कि इफ यू आर इंटरेस्टेड वी वुड लाइक टू स्टार्ट अ फेसबुक डेवलपर सर्कल इन इंदौर। तो ऐसे ही चैप्टर कुछ कुछ और सिटीज में भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया। तो फेसबुक डेवलपर सर्कल इज वन ऑफ दोस चैप्टर्स। एंड आई हैव बीन लकी इनफ कि मेरे को फेसबुक की तरफ से सिंगापुर ऑफिस में जाके टॉक देने का भी मौका मिला था गुड गुड, फॉर वेरी दिस पर्पस इटसेल्फ। आई वाज मोर लकी क्योंकि जो फेसबुक का एफर्ट समिट होता है विच हैपेंस इन यूएस सैन फ्रांसिस्को, उसके लिए भी मुझे इनवाइट आ चुका है कंटिन्यूसली 2 इयर्स तक। तो वेरी गुड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कितना हेल्प कर रहे हो दूसरों को, एंड देन यू गेट रिवॉर्ड्स इन रिटर्न। तो दिस हैज बीन द जर्नी। Yeah, I mean it's not only a single rewards, इवन एक तो आप इतने सारे लोगों के वो सीखने में इम्पैक्ट डाल रहे हो, ऊपर से आपको जो रिटर्न मिल रहा है, मतलब जो लाइक वहाँ पे जाके प्रेजेंट करना हो सकता है। ज़रूर नहीं कि हर किसी को जॉब मिल जाए फेसबुक हेडक्वार्टर ऑफिस में, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे तरीके भी होते हैं जहाँ पे वहाँ प्रेजेंट करने, खुद को प्रेजेंट करने का, या फिर वहाँ से लोगों के साथ कनेक्ट करने का मौका मिलता है। सो इट्स ग्रेट। आई मीन ऑब्वियसली ये सब आई थिंक ये सब कुछ मिला है एट द अर्ली एज, आप बिकॉज ऑफ द कम्युनिटी, राइट। सो आई थिंक हर किसी को कम्युनिटी में अब से तो एटलीस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिसोर्सेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, and here I want to add something that do you prefer paid course over the YouTube course? A big no. I mean a big no, because अगर मैं बात करूं 2016 2017 की, राइट, उस टाइम पे इतना ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था यूट्यूब पे। तो जब ये एडटेक इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, राइट, तो दो तरीके के लोग हुए। एक वो थॉट कि यार स्कूल वाला जो करिकुलम है उस तरीके से सीखना ज्यादा बेटर है, राइट। तो ये जो जितनी भी एडटेक इंडस्ट्रीज है ना, ये सिर्फ उस माइंडसेट का फायदा उठा रही है कि स्टूडेंट्स को आदत है कि यार अच्छा आज ये चैप्टर पढ़ना रहेगा, कल मेरे को पता चल जाएगा कि करिकुलम में कौन सा आएगा, दूसरा ये पढ़ना रहेगा, फिर तीसरा ये रहेगा। तो जितनी भी एडटेक इंडस्ट्रीज है ना, ये सिर्फ आपको जितना भी कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में, वो आपको एक तरीके से अच्छे से अरेंज करके पैक वैक करके अच्छे से आपको दे देती है। इट्स जस्ट दैट। बाकी जो कंटेंट वो लोग आपको पैक करके दे रहे हैं अच्छे से पैकेजिंग में कवर करके, उसका पैसा ले रहे हैं आपसे। सेम कंटेंट यूट्यूब पे 10 अलग अलग लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। एंड आई कैन प्रूव इट। आई मीन आप किसी भी एडटेक कंपनी का लेकर आ जाओ एंड देन आई कैन शो इट टू यू दैट अच्छा ये पर्सन है, ये आपको फ्री में यूट्यूब पे सिखा रहा है। एंड द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब इज यार एज अ स्टूडेंट, राइट, अपन जब स्कूल में, चलो स्कूल में तो एक ही तरीके का पढ़ाई करने का होता था, कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तो राइट, किसी को लिख लिख के समझ में आता है, किसी को डायग्राम्स देख के समझ में आता है, कोई बुक किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ता है तो उसको समझ में आता है। तो सेम इज द ब्यूटी ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब पे आपको कोई एक टेक्निकल कंसेप्ट जो सीखना है, उसके 10 अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगे। कोई बंदा रहेगा जो आपको ग्राफ बना के सिखा रहा होगा, कोई जो है वो आपको थोड़ा कॉमेडी तरीके से आपको वो कंसेप्ट समझा रहा होगा, आपको वो समझ में आ सकता है, कोई आपको हिंदी में समझा रहा होगा, कोई आपको इंग्लिश में समझा रहा होगा। तो एंड गोल सबका सेम रहता है कि वो आपको टॉपिक समझा रहा होता है, बट सब अलग अलग तरीके से। इट्स टोटली डिपेंड ऑन द माइंडसेट, राइट? एग्जैक्टली। तो यू कैन पिक एंड चूज अकॉर्डिंगली। तो पेड कोर्सेज आर समथिंग व्हिच यू शुड नॉट वेस्ट योर मनी ऑन। हैविंग सेड दैट, हर एक पर्सन का अलग अलग लर्निंग कर्व होता है, करेक्ट। किसी को जल्दी सीखना होता है, किसी को आराम से सीखना होता है कि चलो मेरा जॉब तो चल रहा है, मैं पैरेलली कुछ सीख लूं। तो उनके लिए ये पेड कोर्स एक इजी तरीका हो जाता है, क्योंकि बिकॉज दे आर ऑर्गेनाइज्ड, मोर ऑर्गेनाइज्ड कर पाते हैं। बट अगर आप बडिंग फ्रेशर हो, आप कॉलेज में हो, तो आपके पास बहुत टाइम है, आपको पढ़ने के अलावा और कुछ करना नहीं।
तो यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, हर चीज अवेलेबल है, हर एक चीज अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री में। ऐसा कोई सा कंसेप्ट नहीं है डाटा स्ट्रक्चर्स का, किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल नहीं। इवन जो बंदे का एक पेड कोर्स अवेलेबल दिखेगा आपको किसी एक वेबसाइट पे, दैट पर्सन ऑल्सो माइट हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल। या इट्स जस्ट दैट कि वो इतने अब फेमस हो गए हैं तो वो लोग एक पेड कंसेप्ट में चले गए, बट हर कोई अपनी जर्नी यूट्यूब से स्टार्ट करता है और यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बहुत सारा अवेलेबल रहता है। या तो sort of a big yes to the free material which is available. yes, I totally agree with this concept. Even most of the, even I have learned so many, whatever I learned, I rarely buy one or two course and within 1,000 rupees, right? Yes. And both courses are even I don't know at that time. And I want to add one more thing, that ki nowadays the courses are more organized because it is the market of competition. Correct. कंपटीशन का काफ़ी ज़्यादा, तो हर कोई अपना जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट डिलीवर कर रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी दे सके, क्योंकि उनको एक बार किसी ने बोल दिया कि अगर मान लो किसी ने नॉर्मली आई लर्न हुक्स, रिएक्ट हुक्स फ्रॉम ए डिफरेंट फ्रॉम ए यूट्यूब चैनल एंड अगेन आई एम गोइंग फॉर द पेड कोर्स, देन देर आर, मतलब अगर मुझे बेसिक आता है देन मुझे एडवांस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, या फिर मुझे आर्टिकल या फिर स्टॉक ओवरफॉल से हम लर्न कर सकते हैं। एंड इससे बढ़िया मैं हमेशा इसलिए रिकमेंड करता हूँ, हर कोई बोलता है कि यार कैसे मतलब इतना सारा पेड कोर्स फिर रहता नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता। देखो यार, वो शुरुआत ऐसा हो रहा है, लोगों की इमोशन एंड लोगों की माइंडसेट से खेला जा रहा है, बस इतना ही है। क्योंकि मैंने भी मतलब मैं पर्सनली मैंने महसूस किया है कि पहला, जैसे कि आपने बताया कि 2016 बैक देन 2016, तब एक तो इतना मार्केट कंपटीशन का था नहीं है, दूसरा चीज़ है कि तब इतना ज़्यादा नेट जो भी डाटा का पैक आप बोल सकते हो उतना ज़्यादा इजी अवेलेबल नहीं था। सो उसका भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी सब कुछ मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि यूट्यूब इज बेस्ट टीचर फॉर यू। एंड अगेन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो यूट्यूब दूसरा फीचर्स भी लाने वाला है जहाँ पे आपको सब नॉर्मल फ्री कोर्स के साथ साथ आपको, जैसे कि हम लोगों को कोई पेड कोर्स बेचना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली एक वी हैव टू क्रिएट ये डिफरेंट टाइप ऑफ डोमेन और डिफरेंट टाइप ऑफ, या फिर यूडेमी में आप यूसेज कोर्स को बेच सकते हो या फिर किसी, लेकिन यूट्यूब अभी खुद ला रहा है। आई डोंट थिंक कि ये वर्थ इट है। बाकी आई मीन तो मतलब यू आर अ कंटेंट क्रिएटर राइट, मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, बट कंटेंट क्रिएटर्स में बहुत डिफरेंट कैटेगरीज है राइट। हम अभी टेक्निकल कंटेंट दे रहे हैं, कोई मैथोलॉजिकल दे रहा होगा, कोई गेमिंग दे रहा होगा, कोई स्पेसिफिक लर्निंग का दे रहा होगा। तो YouTube has to cater all sorts of content creators, correct? तो that's the reason जो सब्सक्रिप्शन वाला मॉडल आया YouTube पे, मेंबरशिप वाला मॉडल आया है, ये उन सारे सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ क्रिएटर्स को कैटर करने के लिए आया है कि जितने भी क्रिएटर्स हैं वो उनका प्लेटफॉर्म छोड़ कर ना जाए। आई मीन आई कांट गिव यू द एग्जैक्ट नेम्स एंड नंबर्स। YouTube एक्चुअली पेज दोस कंटेंट क्रिएटर्स कि आप अपना कंटेंट YouTube पर ही डालो फ्री में, आप किसी और प्लेटफॉर्म पे मत जाओ। फॉर एग्जांपल जस्ट लेट्स इमेजिन आप स्टैंड अप देखते हो, मतलब ये जो ऑब्वियसली। हाँ, तो आपका फेवरेट कौन है? इवन जाकिर खान, मैं 2 घंटे 3 घंटे सुन सकता हूँ। जाकिर खान देखते हो, तन्मय भट्ट इज आल्सो गुड। तो आई मीन देयर इज अ हाई possibility that YouTube pays content, we can't take names, but YouTube pays content creators like this that okay, stay on YouTube, we will pay you monthly this amount and keep on posting free videos. Oh, because it's हाँ, उन लोगों के लिए तो बहुत easy है ना, उनको सिर्फ एक वेबसाइट बनानी है, वहां पे वो कंटेंट डालना है, क्योंकि उनकी ऑडियंस तो बन चुकी है। ऑब्वियसली वो YouTube पे ऐसे घूमते फिरते नहीं आ रही जनता कि चलो और दिख गया तन्मय देख लो। YouTube पे तन्मय को ही देखने आ रही ऑडियंस, या डोमेन पे डालेगा तो चल जाएगा।
सो नाउ यूट्यूब हैज टू मेक श्योर कि यार लोग उनका यूज करके निकल ना जाए, लोग रुके यहीं पे। तो दैट्स द रीजन सब्सक्रिप्शंस, मेंबरशिप और ये सारी चीजें चल रही है अभी। या यूट्यूब को भी अगेन कब तक फ्री में चलाएगा, ऑब्वियसली। एड से कितना ही कमा लेंगे, राइट? तो ये सारा कुछ फंडा रहता है। तो सबको अपना अपना प्रोडक्ट चलाना होता है। एंड अगेन एज आई मेंशन कि आइटरेशंस करते रहने पड़ेंगे यूट्यूब को, हर किसी को करते रहने पड़ते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो यूट्यूब को भी करना ही पड़ेगा। तो जो आप बता रहे हो, दिस इज जस्ट वन आइटरेशन टू सर्वाइव इन द मार्केट। या बिकॉज हर किसी का कंपटीटर तो आ ही जाता है मार्केट में। तो ग्रेट, आई मीन this is out of my mind. I mean, I don't know about this, right? I mean, I have knowledge a little bit, but not exactly this kind of. So the next question is, if someone want to start now to become you, so how they should start? What are the road maps? So I mean, first of all, I would never want that someone should have the journey which I have been through, because there have been so many struggles. मतलब There are ups and downs, right? बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, ठीक है, लाइफ में, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा। तो आई वोंट वांट कि कोई मेरे जितने स्ट्रगल्स को फेस करे। बट इफ यू आर आस्किंग कि क्या रोड मैप होना चाहिए किसी का टू sort of become sort of successful, or I won't even say successful, to just be sort of comfortable in your life, because job, most of the लोग जॉब करते हैं, राइट? मतलब हर कोई अपनी कंपनी में स्टार्ट कर सकता है। अगर स्टार्ट कर भी रहा है तो अगेन आप वही काम ही कर रहे हो कहीं ना कहीं, राइट? तो माय सजेशन टू पीपल वुड बी कि राइट आफ्टर कॉलेज आप लोग ये मत सोचो कि यार मेरे को इतने का पैकेज मिल जाना चाहिए या मैं इस टाइप की कंपनी में चले जाऊं। आपका कॉलेज के बाद 1-1.5 साल तक का सिर्फ यही एम होना चाहिए कि मैं एक ऐसे माइंडसेट में आ जाऊं, या पर्सनली मैं खुद को इतना ग्रूम कर लूं कि जॉब का टेंशन नहीं रहे लाइफ में कि यार जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी आगे, या जॉब कैसे करूंगा आगे। मतलब ये क्वेश्चन जहन में नहीं आना चाहिए, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मतलब जो फाइनल ईयर में अपने पास क्वेश्चन रहता है ना दिमाग में कि क्या मेरे को इस कंपनी में जॉब मिल जाएगा, वो 1-1.5 साल में आपका वो क्वेश्चन हट जाना चाहिए। जॉब करते करते आपको बेसिकली यू शुड बी इन अ पोजीशन टू चूज कंपनी कि यार मैं ये 3 कंपनी में अप्लाई कर देता हूँ, इन तीनों में से मेरा एक में हो जाएगा, ये मेरे को ठीक लग रही है। मतलब मैं उस कंडीशन में होना चाहिए कि मैं चूज करूँ, रेदर देन कि मैं 25 कंपनी में आंख बंद करके अप्लाई कर रहा हूँ, फिर जो मेरे को चूज कर ले वो मैं उसमें चले जाऊंगा। तो ये ट्रांजिशन एक बहुत जरूरी होता है करना, क्योंकि आप अपने दिन के 9-10 घंटे किसी एक जॉब को दे रहे हो। तो सही स्टेट ऑफ माइंड में होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज सबसे पहले अचीव करना होती है आपके टेक्निकल करियर में, कि आपका माइंडसेट फ्री हो जाना चाहिए कि मैं जॉब इजीली कोई सी भी जॉब गेट कर सकता हूँ। दैट इज व्हेन यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनल स्किल्स। जो आप बता रहे हो ना कि सिर्फ कोई लैंग्वेज आना जरूरी नहीं है, आपके अंदर ऑनरशिप स्किल्स कैसी है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स कैसी है, आप प्रोडक्ट को सिर्फ कोडिंग के अलावा और क्या दे पा रहे हो, आपके व्यूज कैसे आ रहे हैं। और ये सब कब आएंगे, जब आपका एक सेक्शन ऑफ माइंड फ्री हो चुका है कि अब मेरे को कोई लोड नहीं है, मैं इजीली जॉब कर सकता हूँ कोई सा। तो ये चीज अचीव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है लाइफ में। अब कुछ लोग पास आउट होने के बाद ये चीज अचीव करते हैं, कुछ लोग कॉलेज में रहते ही ये चीज अचीव कर लेते हैं। उनके लिए और ज्यादा अच्छा है कि यार कॉलेज में रहते रहते उनको एक इतना अपने आप को खुद को ग्रूम कर लेते हैं कि पता होता है कि चलो ठीक है, जॉब में को मेरे टाइप का कोई ना कोई मिल जाना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि सॉर्ट ऑफ पीस ऑफ माइंड की इजीली कोई सा भी जॉब मिल जाएगा। तो दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड अचीव। सेकंड, वंस यू आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि यार अब मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी मैं कोई सा भी जॉब कर सकता हूँ, आपको वहां कंफर्टेबल नहीं होना है। यू शुड कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। आपको खुश नहीं होना है, मतलब जिससे जो मिल गया उससे एक बार। हाँ, क्योंकि अगेन जैसे ही आपको ये वाली चीज पता चली कि अरे अब तो मेरे को कोई सा भी जॉब मिल जाएगा,
बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप सेटल हो जाओगे वहीं रुक जाओगे यहीं पे। बट 1-1.5 साल भी नहीं लगेगा आपको, अगेन इंडस्ट्री आपको झटका देगी। एंड आई मीन वी आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ वर्ल्ड कि नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी चीज परमानेंट नहीं है। इवन द टेक्नोलॉजी भी परमानेंट नहीं है, कोई सा जॉब परमानेंट नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो अभी रिसेशन में क्या सीन चल रहा है। मतलब स्टूडेंट्स का ड्रीम होता था कि मेरे को फैंग कंपनी में, अब उसी से नफरत होने लगा है। मेरे को जॉब चाहिए फैंग कंपनी में, मेरे वो सीनियर वहाँ फेसबुक में काम कर रहे हैं, मेरे सुपर सीनियर वहाँ जॉब कर रहे हैं, और अब पता चल रहा है कि एक एक दिन में 1000 लोगों को फायर किया जा रहा है। तो अल्टीमेटली इट ऑल कम्स डाउन टू कि आपका स्किल सेट कैसा है। क्योंकि आप जैसे तैसे जुगाड़ करके अगर वहां पहुंच भी गए 10,000 एम्प्लॉइज में अमेजोन के, बट अगर आपके पास स्किल नहीं, आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो अमेजोन 1000 एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने वाला है उसमें से आप एक निकल जाओ, ऑब्वियसली, क्योंकि आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया। तो कॉन्स्टेंटली कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ फॉर एनी टेक्नोलॉजी। तो मेरे केस में क्योंकि मैं कम्युनिटीज में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा रखता हूँ मेरा, तो बाय डिफॉल्ट मेरी वो रिक्वायरमेंट हो जाती है कि मेरे को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते रहना पड़ता है। तो इट हेल्प्स मी अ लॉट बिकॉज ऑब्वियसली यू हैव टू बी, मतलब ऐसे काफ़ी टाइम हो सकता है बिकॉज बाहर से ऐसा लग सकता है कि आपको ऑब्वियसली आप काफ़ी सारे, मतलब अगर मैं खुद से कंपेयर कर लूँ तो कंपेयर तो करना भी गलत होगा, लेकिन खुद से भी अगर कंपेयर करूँ, मैं अगर इतना सा हूँ मतलब 1%, देन आप 100% हो, फिर भी आप खुद से सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिल रहा है। क्यों? अगर आप एक बार अगर आपको खुद से सेटिस्फेक्शन मिल गया, देन कैरियर वहीं के वहीं रुक गई। एंड यहाँ पे दूसरी चीज़ मैंने सुना था कहीं किसी टॉपिक पे कि अगर आपको रुकना ही है तो फिर आप सरकारी में चले जाओ। आप इंडस्ट्री में क्यों आए हो, प्राइवेट में क्यों आए हो? क्योंकि प्राइवेट में लोग प्राइवेट को इतना ज़्यादा नीचा करते हैं, इतना ज़्यादा मतलब अंडररेट करते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको हमेशा सीखना पड़ता है, हमेशा। इवन आपको कंपनी में आप सेम रोल में हो, सेम रोल कंपनी आपको पे करेगी, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। दैट्स द स्पिरिट, मतलब दैट्स द, हर किसी को वही गोल लेके रखना चाहिए। एंड जैसे कि आपने बताया रिसीजन, माई सेकंड क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि व्हाट अबाउट द करेंट सिचुएशन ऑफ द, आई मीन द रिसीजन एंड ऑल, आई मीन इससे क्या कितना हम लोगों को, आई मीन जो आने वाले टाइम में इवन 24 बैच या फिर 23 बैच आई थिंक दे हैव ऑलरेडी सेटल, एंड वी हैव हर्ड दैट कि काफ़ी सारे लोगों को, जिन लोगों को ऑलरेडी 23 बैच का जो प्लेस हो चुके थे, उनका वापस लिया जा रहा है। इवन कुछ कंपनी, आई डोंट नो, ऑब्वियसली एवरीवन नो दैट कि विप्रो जैसे कंपनी, जहाँ पे आपको एग्जैक्ट अमाउंट भी बता रहे हैं कि 6.5 दे रहे थे, ऑफर कर चुके थे, अभी उनको मेल भेजा जा रहा है कि अगर आप चाहते हो कि 3.5 में ज्वाइन हो सकते हो, देन वेलकम, अदरवाइज यू कैन गो फॉर द अनदर कंपनी। सो यहाँ पे कैसे लोग अपने खुद को डिसाइड करें? करेक्ट। तो सो बेसिकली रिसेशन अगर आप देखो, राइट, तो इट्स जस्ट अ सर्कल। जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना, एक जर्नी कंप्लीट करती है और एक टाइम आता है कि रिसेशन हो रहा है। वी आर सीइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ्स, करेक्ट, क्योंकि एक बार 2007 में आया था, वी ऑल वर किड्स बैक देन, कुछ पता नहीं, मतलब सिर्फ वर्ड पता था कि एक रिसेशन जैसा कुछ तो आया था और प्रॉब्लम हुई थी लोगों को, राइट। तो आई कैन शेयर द एक्सपीरियंस विद दिस पर्टिकुलर रिसेशन इटसेल्फ, ठीक है। तो जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, बहुत सारे लोगों से बात करी जिनका जॉब गया है, अमेजोन वाले, फेसबुक वाले, एंड देन बहुत सारे एमएनसीज वाले भी, राइट। तो कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया है, आई मीन डीप डाउन इन देयर हार्ट्स एज वेल, उनको पता था कहीं ना कहीं कि यार हाँ, मतलब मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, मतलब मुझसे बेटर लोग कर रहे थे। आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव अपग्रेडेड माई सेल्फ। मतलब अगर मैं मेरी जॉब प्रोफाइल में भी सही कर रहा था, तो शायद से मैं बहुत टाइम से वही कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो जितने भी लोगों से मैंने बात करी है, कहीं ना कहीं मुझे ये चीज नोटिस हुई है। बहुत ही वाइटल बात बताई आपने। रिसेशन बेसिकली क्या करता है ना, रिसेशन शोज यू मिरर, आपको एक
आपके बारे में एक प्रॉपर, इट्स जस्ट लाइक अपन स्कूल में होते थे ना, एक सरप्राइज टेस्ट नहीं हो जाता था क्या, आज टीचर आया, आज सरप्राइज टेस्ट है, ठीक है। एक्चुअली तो पूरा सरप्राइज टेस्ट में 3 टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में पता चल जाता था। सबसे पहले जो कि फाइनल एग्जाम में भी फर्स्ट आने वाले रहेंगे, किसी भी दिन उनका एग्जाम ले लो फर्स्ट आएंगे, और नहीं भी लो तो भी पता है कि अरे हाँ ये सही बनता है, ये पढ़ने वाला। दूसरे टाइप के लोग जो कि सिर्फ फाइनल एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ते हैं और सेकंड थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं। और थर्ड टाइप के लोग जिनको फर्क नहीं पड़ता, फाइनल एग्जाम हो गए, सरप्राइज टेस्ट हो। तो जो रिसेशन है ना, वो जो टॉपर बंदे हैं उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता रिसेशन से, ठीक है। प्रॉब्लम किसको आती है, जो हमेशा फेल होता है या जो एंड टाइम पे या एग्जाम के पहले जस्ट उसको बता दो तब पढ़ाई करने वाला होता है और तब पास हो जाता है। तो रिसेशन ये जो दूसरी और तीसरे नंबर की कैटेगरी है उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब इसमें से प्रॉब्लम ये भी हो जाती है कि जो दूसरे नंबर की कैटेगरी है, जो सीख के एग्जाम के एक दिन पहले एग्जाम देती है, वो लोग भी कुछ कुछ इसमें फंस जाते हैं। बट उनके लिए इजी होता है कि नेक्स्ट जॉब गेट करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है उनके लिए, क्योंकि फटाफट वापस से पढ़ा, वापस से नई जॉब मिल गई। प्रॉब्लम हो जाती है तीसरे टाइप के लोगों के लिए, जो कि गलती से किसी कंपनी में हायर हो गए। अब उनको एक असली मिरर दिख जाता है कि हाँ यार अब अपने को सीखना है। तो रिसेशन बेसिकली एक तरीके का सेपरेशन है, एक तरीके का साफ सफाई जिसको बोल सकते हैं। मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट, इट करेक्ट्स इटसेल्फ एवरी टाइम। कितना भी कैसा भी शेयर हो, एक करेक्शन आता है, मिली सेकंड में हो जाता है। प्राइस हमेशा बढ़ते नहीं रह सकता, अरे एक करेक्शन आता है, एवरेज आउट होती है हर चीज। तो सिमिलरली आईटी इंडस्ट्री में भी एक एवरेज आउट होता ही है। तो अगेन वो जो क्रीम पीपल है, जो हमेशा जिनको अपने आप को अपग्रेड करके रखते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। जो लोग अपग्रेड नहीं करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो बुरा लगता है वो बीच वालों के लिए लगता है कि थोड़ा सा तो आता था उनको, बट फिर भी इस चीज के कारण वो फंस गए। एंड अच्छी चीज ये होती है कि वापस से भी वो लोग नया जॉब इजीली गेट कर सकते हैं। तो रिसेशन आई गेस इजीली टेकन केयर हो सकता है, हैंडल प्रॉपरली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसके अंदर, अगर आपको अपनी स्किल्स के ऊपर भरोसा है। क्योंकि 2007 वाला जो रिसेशन था, आज 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मतलब लिटरली अगर आपने एक जॉब छोड़ा है तो आपको 5 वैसे सेम टू सेम जॉब्स अवेलेबल, वैसी कंपनियां अवेलेबल है आपके पास मार्केट में अप्लाई करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है आजकल। इट जस्ट कि आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करके रख रहे हो उस चीज के लिए। सो दैट्स द ओनली थिंग। तो रिसेशन से बेसिकली डरने का नहीं, दैट इज व्हाट आई वुड वांट टू से। या एंड या ऑब्वियसली आपने जो भी बताया बराबर बताया, मतलब स्पेशली द 3 कैटेगरी। एंड ये तो चलो मैंने ये मान लिया कि ये उन लोगों के लिए है जिनका हो चुका है, बट इसका इम्पैक्ट करंट सिचुएशन, मतलब करंट जो बैच आ रहे हैं, आई मीन 24 23 सो या फिर 25, क्योंकि जितना मतलब रुक नहीं रहा है ना ये सब चीज़। सो उसके बारे में क्या, मतलब उनको क्या करना है, उनको अभी क्या क्योंकि उनको भी प्लेस होना है ना, आई मीन उनके दिमाग में भी हर कोई चाहता है कि कॉलेज से पहले पहले, इवन इंजीनियरिंग में तो ऐसा होता है कि 1 साल पहले से आप प्लेसमेंट ले लो एंड चिल करो पूरे लाइफ, तो नेक्स्ट ईयर तक। सो उनको क्या करें, मतलब वो अभी कैसे फेस करें, या फिर वो बेटर अपॉर्चुनिटी कैसे खोज सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो हर चीज के कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, करेक्ट। तो ये जो फ्रेशर्स हैं इनके ऊपर रिसेशन का मतलब एक होता है ना कि गलती किसी और की और भुगतना किसी और को पड़ता है, राइट। तो रिसेशन में बेसिकली यही प्रॉब्लम होता है। आप बेसिकली देख लो, मतलब कोई सा भी एग्जांपल देख लो कंपनी में, अगर कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी है तो कौन से डिपार्टमेंट में से लोग हटाते हैं सबसे पहले? हायरिंग डिपार्टमेंट में से, यार एचआर में से लोग हटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। अगर और कट डाउन करना है तो इंटर्नशिप्स को इंटर्न्स को कम सैलरी दे दो और कट डाउन कर लो। तो बेसिकली रिसेशन का भी जो एडवर्स इफेक्ट होता है वो फ्रेशर्स के ऊपर ही होता है कि कंपनी को कॉस्ट कटिंग करनी है। अब तो जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको तो अब मैं बोल नहीं सकता कि यार
प्रीवियसली आई यूज्ड टू पे 30 LPA, अब आपको मैं 25 ही दूंगा, करेक्ट? क्योंकि उनको स्विच करना ज्यादा इजी है, वो कहीं और स्विच कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इजी टारगेट कौन? सबसे ज्यादा इजी टारगेट कौन? जो फ्रेशर। तो फ्रेशर्स का बजट कम कर दो, करेक्ट? तो ये तो मैं कंपनीज के एंगल से मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कंपनी क्यों फ्रेशर्स को कम कर देती है पैसे देना रिसेशन के कारण, क्योंकि फ्रेशर्स आर दी मोस्ट इजी टारगेट किसी भी कंपनी के लिए। अब फ्रेशर्स इससे कैसे डील करें, करेक्ट करेक्ट? तो अभी अगर ऐसा होता सीन कि यार आपके क्लास में 15 बच्चों को ज्यादा पैकेज मिल गया, आपको ही कम मिला, तो वो फिर फेयर नहीं होता, करेक्ट? क्योंकि आपको कम मिला। बट यहाँ पे तो पूरी बैच के साथ ये सेम होने वाला है, मतलब आप सब लोग सेम ही रेस में हो। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर रहे हो आप लोग। जितना पीछे से स्टार्ट करोगे आगे उतना ज्यादा पुश मिलेगा आपको। सब लोग बोलते हैं ना इंटर्नशिप या आपका करियर स्टार्टअप से स्टार्ट करना चाहिए। व्हाई? सैलरी कम मिलती है, बट कम सैलरी में जो सीखते हो ना आप, अनमैचेबल, वो अनमैचेबल रहता है, मतलब लिटरली अनमैचेबल रहता है। और उसके बाद मतलब कोई भी स्टार्टअप एम्प्लॉय होगा वो इससे रिलेट कर पाएगा। आप एमएनसी में जाओगे, बड़ी कंपनीज में जाओगे, आपको ईयर के स्टार्टिंग में पता रहेगा कि आपको कितना इंक्रीमेंट मिलने वाला है, और इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है ईयर के एंड में। आपको पता है कि जो भी फिक्स है 10, 20, 30 जितना भी है, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला है। स्टार्टअप में दी अपॉर्चुनिटी इज इम्पेकेबल, मतलब इट्स ह्यूज। अगर स्टार्टअप आइडिया वर्क कर गया या आप ज्यादा सीख गए तो 10 साल का एक भी आ सकता है। x 2x 3x इज जस्ट अ नंबर। तो आप स्टार्ट कहीं पीछे से कर रहे हो, बट अगर आपने करियर के इनिशियल स्टेज में 1-2 साल में स्किल्स पे फोकस कर लिया, तो आपका जो मल्टीप्लायर है ना, वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाएगा कि कितनों को पीछे छोड़ दोगे। तो जो रिसेशन का टाइम है, इसमें आई जस्ट गिव वन फीडबैक कि आपकी सैलरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, बट जो 1-2 साल है फ्रेशर वाले, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपकी लर्निंग आपसे कोई नहीं छीन सकता। रिसेशन हो या कुछ भी हो, इनिशियल 1-1.5 साल की जो लर्निंग है ना, उस पर सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि फिर मल्टीप्लायर फट बढ़ता है। आपने अगर 20,000 से भी स्टार्ट किया है ना, तो 20-40 होंगे 6 महीने के अंदर, और वो 40-80 हो जाएंगे 1 साल के अंदर। तो जिस बंदे ने 80 में स्टार्ट किया था 1 साल पहले, वो डर डर के 80 में ही कर रहा है अभी तक, यार मैं 80 के वर्थ हूं भी कि नहीं। बट आपने 1 साल में इतना ग्रो कर लिया कि आपने 20x2 40, 40x2 80 कर लिया। नाउ यू फील कि अच्छा आई डिजर्व इट। तो जर्नी इज योर्स। मतलब आई एम फ्रॉम दी अदर पार्ट, मैं वही हूँ भी, मतलब आई स्टार्टेड फ्रॉम 7। मैंने तो 7,000 से स्टार्ट किया था लाइफ में। तो शुरू के 1-1.5 साल 3 साल मेरे को भी यही फील होता था कि यार क्या ही सैलरी है मेरी, क्या ही कर रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं है। बट जो पैरेलली लर्निंग हो रही थी ना, उसका फायदा आज दिखता है कि जो मल्टीप्लायर बड़ा है आखिरी के 1-2 साल में। इट्स ऑल कम्युलेटिव। लोग बोलते हैं ना शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, बाद में फायदा होगा। तो नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, इट्स फॉर लॉन्ग टर्म। सेम इज द कंसेप्ट विथ योर जॉब एंड योर करियर, कि इनिशियल डेज में आप लोग टेक्नोलॉजी पे, आपकी लर्निंग पे फोकस करो, और बाद में आपको सैलरी विल बी समवेयर नेक्स्ट लेवल। यू वोंट हैव टू इवन थिंक अबाउट इट कि यार क्या सैलरी गेट कर रहा हूँ। तो सो या गुड। तो यहीं पे मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि आपने वो बताया ना कि रिसेशन के बारे में। एवरीवन नोज दैट कि इट्स बिकॉज ऑफ द कॉस्ट कटिंग, राइट? कॉस्ट को बचाने के लिए, कंपनी का कॉस्ट को बचाने के लिए जो रिसेशन हो रहा है। बट देयर इज़ ए सॉल्यूशन जो कि मार्केट में अभी हर कोई, देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। फर्स्ट कि आप रिसेशन मत करो। रिसेशन का जगह में आप एक काम कर सकते हो कि आप जो सैलरी है उसे घटा सकते हो। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, उसका जो परसेंटेज है वो घट जाएगी, एंड लोगों को होप मिलेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग
इस चीज़ से मतलब हो सकता है काफ़ी सारे ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब उन लोगों को ऐसा है कि टैकल कर सकते हैं उसको, नए जॉब लेने का मतलब वो टैलेंट भी है या फिर वो स्किल्स भी है, बट फिर भी इतना सब होने के बावजूद वो लोग डर रहे हैं कि कहीं रिसेशन हो जाए ना हो जाए, या फिर दूसरा जॉब मिले या ना मिले। सो कौन सा आप ज़्यादा इसमें मतलब आपको कौन सा सही लगता है कि आपको सैलरी घटा देना चाहिए या फिर थोड़ा कटिंग कॉस्ट ही कर देना चाहिए, मतलब थोड़ा रिसेशन कर देना चाहिए? तो सो बेसिकली दोनों चीजें हो रही है, दोनों चीजें हो रही है, और अपनी अपनी जगह पे दोनों चीजें हो रही है। मतलब कॉस्ट कटिंग में सैलरी भी कम दी जा रही है और फिर कॉस्ट कटिंग में जॉब भी जा रहे हैं। बड़ी कंपनीज को लोगों को निकालना क्यों पड़ रहा है? आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, ठीक है? मान लो आपके घर में शादी है, ठीक है? अब आपने 10 15 20 नौकर रख लिए, ठीक है? अब वो मस्त काम कर रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, सब कुछ। अब शादी कितने दिन चलेगी? 10 15 दिन चलेगी, ठीक है, मैक्सिमम। अब शादी खत्म हो गई, बट वो 10 15 एम्प्लॉयज को आपने निकाला ही नहीं, आपने अभी भी रख के रखा हुआ है, ठीक है? हो सकता है और अगले महीने कुछ आ जाए, दिवाली आ रही है और काम में ले लेंगे, अगले महीने ये आ रहा है और काम में ले लेंगे। अब ऐसा करते करते आपको एक दिन सडनली फील हुआ कि यार अब तो ये तो निकालना, बहुत महंगे पड़ रहे हैं। अब आप क्या करोगे? आप उनकी सैलरी थोड़ी घटाओगे, या इट्स आप गुड। उनकी सैलरी नहीं घटाओगे, राइट? आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप ऑप्टिमाइज करो उस चीज को, श्योर करेक्ट? श्योर। अब तो ये प्रॉब्लम होती है बड़ी कंपनीज के साथ। बड़ी कंपनीज ना सैलरी कम करके नहीं इस चीज को ऑप्टिमाइज कर सकती, उनको पूरी प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना होता है। क्योंकि अगर 15 नौकर मेरे घर में रह रहे तो वो सिर्फ सैलरी नहीं ले रहे, वो ओवरऑल मेरा मैनेजमेंट का टाइम, मैं उनसे बात करूं, क्या काम करना है आपको वो बताऊं, ओवरऑल प्रोसेस का भी वो पार्ट बन जा रहे हैं। तो सिर्फ उनकी सैलरी कम करके मैं चीजों को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। मेरे को 15 लोगों को मैनेज करना रहा था, अब मैं सिर्फ 2 लोगों को मैनेज कर रहा हूँ, इससे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो लोगों को हटाना पड़ता है। अब कट टू अगर किसी छोटी फैमिली की बात करें, तो अब छोटी फैमिली में जैसे मान लो कोविड के टाइम पे जनरली अपने घर में एक ही हेल्पर होती है, राइट? बर्तन साफ करने के लिए या झाड़ू वाड़ू करने के लिए, राइट? अपन उनको फिर नहीं निकालेंगे, व्हाट विल मेक श्योर कि ठीक है, एडजस्ट कर लेंगे थोड़ा सा। तो स्टार्टअप्स हो गए या जो छोटी कंपनीज हो गई, दे मूव टुवर्ड्स दिस एडजस्टमेंट मॉडल कि यार थोड़ा सा सैलरी आप कम ले लो, हो जाएगा, काम चल जाएगा अपना। क्यों? क्योंकि टीम्स ही छोटी होती है। आपकी टेक टीम 5 लोगों की है, एक आपका मोबाइल डेवलपर, एक बैकएंड डेवलपर है, आप निकाल नहीं सकते, बट या आपको ये रिसेशन वाला टाइम भी हैंडल करना है। तो इस केस में आप लोग सैलरी की बात करते हैं। तो हर कंपनी अपने अपने लेवल पे हैंडल करती है। बड़ी कंपनीज के पास कोई चॉइस ही नहीं होता है निकालने के अलावा। या तो एग्जैक्टली ऐसा होता है। एंड और सबके अपने अपने रोल होते हैं। अगर छोटी कंपनी निकाल रही है तो वो 2 महीने के उसके साथ निकाल सकेगी। एमएनसी निकाल रही है तो यार उन लोगों ने 4 महीने का एडवांस भी दिया है सैलरी निकालने के लिए। तो इट्स ऑल इक्वल एट द एंड ऑफ द डे। या इवन आप ये सोच पा रहे हो, बिकॉज आई थिंक बिकॉज यू आर इन सच ए पोजिशन, तब जाके ये बोल पा रहे। क्योंकि जो सेकंड पॉइंट आपने बताया ना कि द एग्जाम्पल, द शादी वाला एग्जाम्पल, दैट्स ग्रेट। क्योंकि उन लोग वो कह सकते हैं कि घर के ऐसे प्रोडक्ट हो चुके हैं जिनको आप मतलब वेस्ट ही जाना, आपको घर से निकाल देना है, कबाड़े वालों को देना ही बेहतर रहेगा। दैट्स द ओनली वन ऑप्शन, क्योंकि जो कि दिमाग में नहीं आ रहा था। दैट्स अ ग्रेट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ इंटर्नशिप इन योर करियर? सो इंटर्नशिप एक बेसिक सा डोमेन हो गया। इसको अगर और ब्रॉडर वे में बोले तो कुछ लर्निंग से अपनी कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब वो आप इंटर्नशिप में रह के बनाओ या आप इंटर्नशिप ना करो, घर पे रह के बनाओ, या आप किसी हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करो वहां पे बनाओ, या आप कोई सी डिस्टेंस लर्निंग का पार्ट हो जाओ वहां बनाओ, ठीक है? इंटर्नशिप भी उसी अम्ब्रेला में फॉल करती है कि आप एक ऑफिस में जा रहे हो, वहां पे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, ठीक है? जैसे मल्टीपल चीजें होती है, इंटर्नशिप एक उसका पार्ट हो गया। तो मैं इन सब चीजों का इंपॉर्टेंस बताऊंगा। इन सब चीजों में सबसे एक कॉमन चीज क्या है कि आपने एक प्रोजेक्ट लिया, एक प्रोडक्ट लिया,
आप उसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप उस पर काम कर रहे हो, ठीक। एंड आपको कुछ इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। प्रेशर किस चीज का नहीं है कि यार ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आप जस्ट एक बेसिक सा उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो उस वे में इंटर्नशिप या पर्सनल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? फर्स्ट थिंग, आप कहीं जॉब पे अप्लाई कर रहे हो, करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पहली बार अगर मैं मिल रहा हूँ आपसे, करेक्ट, आप जस्ट इमेजिन करो मैं आपसे पहली बार ही मिल रहा हूँ, आपको मेरे बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, करेक्ट, और मेरी सोशल मीडिया एकदम एम्प्टी है, मतलब फेसबुक लिंक्डइन सब कुछ खाली है, ठीक। अब मैं आपसे मिला और मैंने आपको बोला कि मेरा नाम मृणाल जैन है और मैं स्टेज ओटीटी में काम करता हूँ, करेक्ट। अब आप एकदम ब्लैंक हो, आपको कुछ भी नहीं मालूम है, तो आप सेम मेरे को रिस्पॉन्स नहीं दोगे। बट अगर आप मेरी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख सकते हो कि अरे हाँ दिस अच्छा स्टेज तो शार्क टैंक पे भी आया है, रिलेशन वहां से वहां तक, मृणाल, अच्छा मृणाल तो फेसबुक डेवलपर सर्कल में भी काम करता है, ये सब आपको कहाँ से मिला रेफरेंस? मेरी प्रोफाइल से। तो माय प्रोफाइल इज माय प्रोजेक्ट एज ऑफ नाउ, कि मैं आपको ये दिखा सकता हूँ। तो सिमिलरली जो आप इनिशियल डेज में कॉलेज के 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, 4th ईयर में जो आप इन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो, आप इंटर्नशिप्स पे काम करते हो, ये आपकी स्किल्स को एक रिफ्लेक्शन देता है कि यार ये बंदे को अगर ये स्किल आती है तो दिस इज द प्रोजेक्ट, आप ये देख लो इसने बनाया हुआ है। तो इट्स अ टाइप ऑफ वैलिडेशन। आपको किसी और का रेफरेंस दिलवाने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए एक वैलिडेशन बन जाता है कि अरे हाँ ये बंदे को ये चीज आती है। तो उस सेंस में इंटर्नशिप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3rd ईयर 4th ईयर में आपको इतना भी नहीं पता होता है कि यार क्या चीज सीखनी है, ट्रैक क्या होना चाहिए, रोड मैप क्या होना चाहिए। कुछ सी सीख लिया, C++ सीख लिया, रिएक्ट सीख ली, बेसिक कोई सी एक लैंग्वेज सीख ली, बट एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक लैंग्वेज से प्रोडक्ट नहीं बनता कभी भी, है ना, उसके आसपास बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो जब आप इंटर्नशिप करते हो, जब आप प्रोडक्ट बनाते हो, तो आपको वो सारे बिल्डिंग ब्लॉक बनाने का समझना है। एक फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए किसी प्रोजेक्ट का। अभी तक तो अपन ने छोटी मोटी वेबसाइट बनाई होती है, अपन ध्यान नहीं देते, यहीं कहीं कुछ भी लिख दिया, बट एक्चुअल जो प्रोडक्शन रेडी प्रोडक्ट होगा उसमें फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होगा, वो सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो बेसिकली यू गेट अ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, बेसिकली कि आप इंजीनियर पढ़ने वाला तो बन जाते हो कॉलेज में, बट एक्चुअल रियल वाला जो इम्प्लीमेंटेशन वाला इंजीनियर है वो आप इंटर्नशिप के थ्रू बनते हैं। सो या ग्रेट, आई मीन मतलब जो एक्सप्लेनेशन था वो काफ़ी गजब का था। एंड इसलिए मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी के बेसिक में था, क्योंकि यू आर ए टेकी हेड एट स्टेज, सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दैट कि इज देयर एनी ओपनिंग इन योर कंपनी, बिकॉज देयर आर स्टूडेंट्स who are watching this episode or this podcast. They are basically from the job seeker. So if they want to apply, is there any direct way to contact with you, and is there any opening? Yes. So basically, I am looking for students 24/7, 365 days. Be it for internship, be it for full time. तो मैं टेक स्टैक बता देता हूँ स्टेज का, कि हम किस टेक स्टैक में काम करते हैं, कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करते हैं। उसमें से अगर कोई सी भी एक चीज आती हो तो फील फ्री टू पिंग मी ऑन ट्विटर, ठीक है, आई एम अवेलेबल ऑन ट्विटर। तो आई हैव बीन स्पीकिंग अ लॉट अबाउट फ्लटर। तो हमारा फ्रंट एंड फ्लटर में पूरा मोबाइल एप्लीकेशन होगी, वेबसाइट होगी, सारे कुछ फ्लटर में बनी हुई है, ठीक है। हमारा बैकएंड जो है वो Node.js में, ठीक है। The database which we are using is MongoDB. Our CMS is in React. So these are the 4 core technologies which we are using. If you feel like you are good in some one of it or all of it, feel free to sort of reach out to me on Twitter or whichever social media platform you guys look for. So yes, we are hiring. Okay, great. So guys, if you are looking for anything, any role, and you are good at Flutter, whatever, you are MongoDB and all of these kind of things, application developer, then you can go and check out Mrinal social handles. All the social handles are mentioned in the comment box, in the description. You can go and check out.
So yeah, I have learned too many things from this podcast. The last question, obviously it's optional, and that is your earnings. I don't know it's right way to ask you, but and everyone wants to know because whatever we are doing, no one's care, literally no one's care, you know that it actually. And when we don't know if someone is not getting anything in the sense from the money, and then there are nothing to say कि आपको कुछ भी कर लो, अगर अगर आपको आप फ्री ऑफ कर रहे हो, आपको ज़रूरी नहीं कि आप कितना इम्पैक्ट डाले हो कंपनी में, वो कोई पूछेगा नहीं. सो एज ए अपार्ट फ्रॉम ए पोजीशन एज ए टेकी हेड, व्हाट आर द एस्टिमेट अर्निंग्स? I am not sure. I mean, my estimate earnings are something which not even my parents know yet. Oh. So that would be really difficult for me to say. Yes. But what I can tell you is that जो मैंने आपको I guess फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में जो मैंने एक आंसर दिया था कि जो शुरू के 1-2 साल है ना, वो इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि 2 साल बाद मेरे को जॉब का टेंशन नहीं होना चाहिए. तो दिस इज व्हाट आई डिड. मैंने अब वो मेरे साथ अनइंटेंशनली हो गया वो कि शुरू के 1-2-3 साल मेरे को इतनी मेहनत करनी पड़ी कि 3 साल बाद तो ये हो गया कि अरे अब तो कुछ नया भी आएगा तो सीख लेंगे. तो दैट इज व्हाट आई अचीव्ड इन माय लाइफ इन इनिशियल 3 years, एंड नाउ व्हेन आई एम इनटू 6th year ऑफ माय करियर, नाउ आई एम 100% श्योर कि हाँ ठीक है अभी चल जाएगा. तो आई मीन yeah, earnings are variable. I mean, there is a possibility कि some developer in some other company might be earning more than what I am earning over here as a engineering lead. तो earnings are I guess secondary. तो उस पे initially तो I don't think कि anyone फोकस should करना चाहिए. या उस पे नहीं फोकस करना चाहिए initially. तो 1-2 साल में सबका सॉर्ट हो जाता है. अगर आप प्रॉपर ध्यान दे रहे हो अपने टेक स्किल्स पे तो 1-2 साल में आपका सॉर्ट हो जाएगा. आपने कहीं से भी स्टार्ट किया, मैंने एग्जांपल दिया ना, 8 से भी स्टार्ट करते लोग, 12 से, 15 से, 20 से, 25 से, सबसे स्टार्ट करते हैं. बट स्टार्टिंग इज लीस्ट इम्पोर्टेंस. बहुत मतलब मायने ही नहीं रखती स्टार्टिंग. जो इनिशियल 2 साल में आप लोग मेहनत करते हो ना, उससे पता चलता है कि वो 50 वाला जहां से स्टार्ट किया था वो 75 तक पहुंचा है, 75 तक पहुंचा है, और जिसने 8 तक स्टार्ट किया था वो 1.2 या 1.3 तक पहुंच गया. तो वो इनिशियल 1-2 साल में फर्क पड़ती है. सो ऑब्वियसली इनिशियली किसी को फोकस ये नहीं करना चाहिए कि क्या दे रहा है या फिर कितना हो रहा है. आप ऐसे चूज करो स्टार्टअप्स जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले एंड अच्छा एनवायरनमेंट हो, लर्निंग एनवायरनमेंट हो, and startup is the best option for the learning environment. So that's great. Actually I have learned a lot. I mean I can describe बहुत सारा चीज़ें जिसको पता भी नहीं था, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे सीखने को मिला. सो थैंक यू सो मच मिनाल एंड हैव ए ग्रेट सेशन विथ यू. एंड ऑल्सो गाइज मैंने ऑलरेडी मिनाल का सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सारा का सारा कुछ सोशल हैंडल. इफ़ यू आर कैपेबल एनफ then you can go and check out those links. Obviously you can talk with Minal and whatever your doubt is you can clear out them. So thank you so much again Minal and मिलते हैं किसी और एक कभी मौका मिले तो दूसरा पॉडकास्ट के साथ. थैंक यू. Definitely. Thanks a lot, Maruf, for inviting me. Okay, yeah, thank it's lovely talking to you. Okay, thank you.